Hey all my dear students of class 5th, this is Priyanka Arora in front of you, welcoming you all to your maths online class, and I welcome you all after your first term examination. So students, now we will be moving on back with the fresh topics, and today in this particular video I will be explaining you about your new topic, your chapter number 5, that is decimal. So without wasting any more time, let us begin with this new topic, decimal, and I will teach you that what are decimal numbers. Okay, so let us begin. So students, first of all we will discuss about the topic knowing decimals. You should know that what are decimal numbers. So for this you can see here in this picture, here you can see that this picture is having 10 mobile phones, and out of these 10 mobile phones, you can see that the first, second and third mobile phone is the touch screen mobile phone. Okay, so total 10 mobile phones हैं और उनमें से 3 जो है वो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन है. तो अगर इस चीज़ को हमें फ्रैक्शन में शो करनी हो तो हम कैसे शो कर सकते हैं? टोटल विल कम इन द डिनोमिनेटर. ओके, 10 है, 10 में से जो 3 है वो क्या है? टच स्क्रीन है. सो 3 विल कम इन द न्यूमरेटर. सो दिस इज द fractional number with denominator 10. Okay, suppose I am taking one more example here, 3 upon 100. Again a second fractional number, but here the denominator is 100. Now I am taking one more example, and now I am taking the denominator as 1000, 3 upon 1000. So you have to remember this, that any fractional number with in denominator either 10, 100, 1000 or 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So if these kind of numbers are coming in the denominator, then that particular fraction is called as the decimal fraction. इसको decimal fractions कहा जाता है. अब इसको decimal number में हम कैसे change करते हैं वो आप यहाँ पर देखिए. Like ये depend करता है कि denominator के अंदर क्या प्लेस्ड है, 10 है, 100 है या 1000 है. लाइक फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके अंदर डिनोमिनेटर में 10 की प्लेसमेंट है. अगर डिनोमिनेटर में 10 की प्लेसमेंट है, दैट मीन्स जो हमारा डेसिमल प्लेस होगा वो 1 डिजिट के पहले प्लेस होगा. सो न्यूमरेटर वाली डिजिट को हम पहले मेंशन करते हैं. लाइक हमने यहाँ पर 3 को प्लेस करा, अब हम डेसिमल प्लेस करेंगे. तो डेसिमल प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में हमने देखा हमारे पास में सिर्फ सिंगल 0 है, तो हमारा जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो सिर्फ 1 डिजिट के पहले आएगी. तो हमारे पास 1 डिजिट है यहाँ पर, यहाँ हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे, एंड देन यू हैव टू कवर दिस डेसिमल विथ 0. ओके, सिमिलरली if we have to convert this decimal fraction into decimal number, then what we will do? First of all you have to write the numerator only. आप जो न्यूमरेटर की वैल्यू है पहले आप उसी को प्लेस करेंगे. तो न्यूमरेटर पे यहाँ पर भी 3 है, तो हमने 3 को प्लेस कर दिया. Now see, in denominator 2 zeros are there. Denominator में 2 zeros हैं, 100 है, 100 means 2 zeros. तो हमारी जो decimal की placement होगी वो 2 digit के पहले होगी. But right now you can see that in the question there is only 1 digit. Okay, यहाँ पर एक ही digit है. तो हम क्या करेंगे? पहले हम इस 1 digit को 2 digit में convert करेंगे. तो 1 digit को 2 digit में convert करने के लिए आप क्या करोगे? आप 3 के पहले 0 की प्लेसमेंट कर दोगे. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. आप 3 के पहले 0 लगाओगे, आप 3 के बाद 0 नहीं लगाओगे. अगर आपने 3 के बाद 0 लगा दिया तो ये 30 हो जाएगा. हमारे पास में नंबर 3 था, 30 नहीं था. अगर हम 3 के पहले 0 लगाते हैं तो भी वो क्या काउंट होगा? वो 3 ही काउंट होगा. लेकिन अगर आप 3 के बाद में 0 लगा दोगे तो वो 3 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? 30. तो इस सिंगल डिजिट को डबल डिजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 के पहले हम यहाँ पर एक 0 प्लेस करेंगे. Now we are having 2 digit. Okay, so now we can put easily the decimal. So here we will be putting our decimal before 2 digit and then cover this decimal by putting 1 0 here. Okay, similarly 3 upon 1000. Now this is the other decimal fraction. To convert it into decimal number, what we will do? We have to place the decimal before 3 digit. हमें 3 डिजिट के पहले डेसिमल की प्लेसमेंट करनी है, बट हमारे पास में न्यूमरेटर में ओनली नंबर 3 है. फाइन, तो इसमें क्या करेंगे? हम एक डिजिट है, इसको हमें 3 डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम आगे इसके 2 0 प्लेस कर देंगे. सो टोटल हो गए अब यहाँ पर 3 नंबर्स, 3 डिजिट्स हो गए.
3 डिजिट के पहले अब आप डेसिमल की प्लेसमेंट करोगे और इसको कवर कर दोगे 0 से. सो दिस इज द डेसिमल नंबर्स. द फ्रैक्शंस which are having in denominator 10, 100, 1000 etc. means all the zeros values 1000, 10,000, lakh, crore, 10 crores. So that will be called as decimal fractions. Okay, and when we convert it into decimal, then they are called as decimal numbers. Fine. Now in this decimal numbers, like suppose I am taking here example 17.25. Okay, so from this 17.25, this 17 will be called as whole part, or you can say that whole number. You know that whole number starts from 0 and then it continues 0, 1, 2, 3, 4, 5 and then it continues like that. So this 17 is a whole number, or you can say whole part. Then this dot is called as decimal. So this is decimal point. Okay, and this 25 is the decimal part. डेसिमल के बाद में जो वैल्यू होती है वो होती है डेसिमल पार्ट. फाइन. अब इसको रीड कैसे किया जाता है? डेसिमल के पहले जो वैल्यू होती है उसको हम कंबाइन रीड करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. लाइक ये अभी प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप अगर ये पीछे की वैल्यू नहीं होती तो हम 17 को कैसे रीड करते हैं? हम 17 को रीड करते 17. सो डेसिमल से पहले तो आप नॉर्मल जैसे प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आप रीड करते हो नंबर्स को, वैसे ही रीड करोगे तो दिस इज 17. देन डेसिमल विल रीड एज पॉइंट, सो 17 पॉइंट. आफ्टर दैट डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज होगी वो आप सेपरेटली रीड करोगे, वो आप कंबाइन रीड नहीं करोगे. सो दिस विल बी रीड एज 25, 17.25. Okay, so this is all about decimal. These are the decimal fractions and these are the decimal numbers, and this we call before decimal whole number or whole part. This is the decimal point, and after decimal point decimal part. I hope till here this topic is clear. Now let us move on with exercise portion. Okay, so I hope that what are the decimals is clear to you. So with that much knowledge we will start our exercise 5A. So here in this first question it is write the decimal number represented by the shaded parts in each of the following figures. You can see in first question some figures are there. One by one we will be solving all these figures. So let us begin with A part. So in the picture shown here you can see that total 10 parts are there, and from 10 parts 5 parts are shaded. So firstly if you have to show it in fraction, so how you will show it? अगर हमें इसको फ्रैक्शन में शो करना होगा तो हम कैसे शो कर सकते हैं? 10 में से 5 शेडेड है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 5/10. 10 में से 5 शेडेड है, सो 5/10. अब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप डेसिमल में इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? आप पहले न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे 5, राइट, और डेसिमल में आप देख रहे हैं 10. 10 मीन्स 1 डिजिट के पहले हमारी डेसिमल की प्लेसमेंट होगी. सो वी आर ऑलरेडी हैविंग 1 डिजिट, सो इस 1 डिजिट के पहले हम डेसिमल की प्लेसमेंट कर देंगे और फिर हम डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5, ए पार्ट. ओके, now in the picture of B part you can see that total 10 parts are there, and from 10 parts how many are shaded? Yes, when you will count it you will find that total 8 parts are shaded from 10 parts. तो इसको भी अगर आप fractions में लिखेंगे तो आप कैसे शो करेंगे? 8/10. 10 में से 8 पार्ट शेडेड है. ओके, और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप वापस देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 10 की प्लेसमेंट है, तो डेसिमल 1 डिजिट के प्रायर आएगा, पहले आएगा. तो आप पहले न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे 8 और 8 के पहले आप डेसिमल को प्लेस करेंगे. डेसिमल को हम कवर करेंगे 0 से, सो 0.8 विल बी द आंसर ऑफ पार्ट बी. फाइन. Let us now move on to C part, and in C part again the picture of C part is here, and you can see that in this picture again total 10 parts are there, and from 10 parts how many are shaded? 6 parts are shaded from these 10 parts. So if we have to write it in fraction, how we can write it as 6/10. Okay, 10 parts में से 6 parts shaded है तो fraction में आ जाएगा 6/10, and
when we will convert it into decimal, so it will be numerator 6 and in denominator 10 is there, so decimal will come before one digit, so 0.6. After putting the decimal, remember to cover it with 0, so it will be 0.6. okay, yes students, now you can see that the picture of D part is displayed here, and in this D part also total 10 पार्ट्स आर देयर. इसके अंदर इस फिगर में 10 पार्ट्स हैं और 10 में से कितने शेडेड हैं? 10 में से 3 बॉक्स जो है वो शेडेड है. तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3/10. ओके, सो फ्रैक्शन में लिखने के बाद में, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखने के बाद में हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 10 है. दैट मीन्स डेसिमल 1 डिजिट के पहले आएगा. तो यहाँ पर 0.3 और इसको आप कवर कर दोगे 0.3. तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑफ डी पार्ट. ओके, let us now move on to E part, and in this picture of E part you can see students that this is a complete square box and this square box is having total 100 parts. इस square box के अंदर total 100 parts हैं. आप देख सकते हैं कि 5 जो complete rows हैं इस पिक्चर की वो फिल्ड है. कंप्लीट 5 रोज फिल्ड है और उसके बाद में जो 6th रो है उसके 8 बॉक्सेस फिल हैं. तो टोटल 1 जो रो है वो 10 बॉक्सेस की है. तो 5 कंप्लीट रोज अगर फिल्ड हैं तो दैट मीन्स 50 एंड देन 8 बॉक्सेस फिल हैं. सो 50 + 8 इज इक्वल्स टू 58. सो आउट ऑफ 100 58 बॉक्सेस आर शेडेड. तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में? ई पार्ट के अंदर टोटल 100 पार्ट्स हैं इस पिक्चर के अंदर एंड एज आई टोल्ड यू 100 में से 58 जो बॉक्सेस हैं, स्मॉल बॉक्सेस हैं, वो शेडेड हैं. सो दैट 58 विल कम इन द न्यूमरेटर. ओके, सो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 58/100. और अब अगर इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली पहले आप न्यूमरेटर लिखेंगे 5 8 58. अब डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 100 है. 100 मीन्स 2 0, सो डेसिमल विल कम बिफोर 2 डिजिट फ्रॉम बैक साइड. सो वी आर हैविंग 2 डिजिट हेयर. सो 1 2 इन 2 डिजिट के पहले हमारा डेसिमल प्लेस हो जाएगा और हम डेसिमल को कवर कर देंगे 0 से. सो 0.58 विल बी द आंसर ऑफ पार्ट ई. फाइन. नाउ सी इन एफ पार्ट. अगेन you can see in this picture total 100 parts are there. इस बॉक्स के अंदर टोटल 100 पार्ट्स है और 100 पार्ट्स में से आप देख सकते हो कंप्लीट 5 जो रोज हैं वो शेडेड है. फाइन. और कंप्लीट 1 रो 10 की है. फाइन. तो 5 रोज अगर शेडेड है दैट मीन्स 50 कंप्लीट बॉक्स शेडेड है. उसके बाद में 6th रो के अंदर आप देख सकते हैं 4 जो बॉक्सेस हैं, टॉप 4 बॉक्सेस शेडेड हैं. सो ये टॉप 4 बॉक्सेस मिला के टोटल हो गया हमारे पास में 54. सो आउट ऑफ 100 54 बॉक्सेस आर shaded here. So if we have to write it down in fraction, so how we can write it? We can write it as 54/100. So decimal fraction में आ गया हमारे पास में 54/100 और decimal number में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 100 है, that means decimal की प्लेसमेंट 2 डिजिट के पहले आएगी बैक साइड से. तो आपने लिखा 54 और इन दोनों के पहले आप लगा दोगे डेसिमल 0.54 और ये हो गया आपका आंसर. So 0.54 is the answer of part F. I hope this question number first is clear to you. In this only you have to see the picture. आप पहले बस पिक्चर देखेंगे. पिक्चर के अंदर जितने शेडेड पार्ट्स हैं वो आप न्यूमरेटर में प्लेस कर देंगे और टोटल पार्ट्स को आप डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल एज आई हैव taught you here. Okay. So students, let us now move on with question number 2 and it is quite simple. We have to do match the following in this particular question. So just read the first A part is 0.8. So here you have to search where is 0.8. So here it is 0.8. So what you will do, don't match it with lines. Okay, you are grown up now, you are in 5th standard. So you will be writing the letter, correct letter here. 0.8 is the answer and its letter is A. So here we will be writing letter A. Then 0.09 कैसे रीड कर रहे हैं हम? 0 पॉइंट को आप रीड करेंगे, डेसिमल को आप रीड करेंगे पॉइंट, देन 0.9. जैसा मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज होती है उसको हम सेपरेटली रीड करते हैं. फाइन.
तो अभी तो ये वैसे भी 0 है तो हम इसको सेपरेट ही रीड करेंगे, तो वी हैव टू सर्च वेयर इज 0.09. सो हियर इट इज सेकेंड, सो इट विल बी द बी पार्ट. फाइन. नेक्स्ट 0 पॉइंट. नाउ डोंट रीड इट एज 125, हम सेपरेटली रीड करेंगे, तो इट विल बी 0.125. सो वेयर इज 0.125? वेरी फर्स्ट, सो दिस विल बी द सी पार्ट. ओके. देन 0.39, don't read it as 39 separately, it will be 0.39, so it is the last part, so here will be the D part. Then 0 point, we will not read it as 675, separately it will be 0.675, so 0.675 is third, that means option part E. Okay. And then last 0.002, so here it is 0.002. This is our part F. Clear? So that was all about exercise 5A, question number 1 and question number 2. Two questions were there. I hope both the questions are clear to you. Now let us move on to exercise 5B. It is having only 2 questions, so I am continuing with 5B also in this particular lecture. See, question number first. Rashmi had 10 oranges. रश्मि के पास में 10 oranges हैं. She gave 4 oranges to Amar. 10 oranges में से 4 oranges उसने अमर को दे दिए. So what fraction of oranges did she give to Amar? तो अमर को उसने कितने fraction of oranges दिए हैं ये हमें बताना है. And write this fraction as a decimal number. और फिर उस fraction को हमें decimal number में भी convert करना है. So first of all we will write this complete statement as it is. Rashmi had 10 oranges. ओके, रश्मि के पास में 10 oranges थे. सो टोटल oranges कितने हो गए? टोटल oranges is equal to 10. ओके. एंड देन oranges given to अमर. अमर को उसने कितने oranges दिए? Oranges given to Amar. So she has given 4 oranges to Amar. अब अगर हमें इसको फ्रैक्शन में शो करना है, सो फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस गिवन. सो कितना फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज उसने दे दिया था अमर को? 10 में से 4 दे दिए, तो फ्रैक्शन में हम इसको कैसे शो करेंगे? 4/10. So like this we can show it in fraction which is asked. See, what fraction of oranges did she give to Amar? So this is the answer of first part in fraction. Now write this fraction as decimal number. अब अगर हमें इस fraction को decimal number के अंदर show करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर decimal number, और डेसिमल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 10 है. 10 है, दैट मीन्स डेसिमल की प्लेसमेंट 1 डिजिट के प्रायर आएगी. तो यहाँ पे हमारे पास में 4 है, हमने 4 प्लेस कर दिया न्यूमरेटर में, 4 के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा. एंड देन वी विल कवर दिस डेसिमल बाय पुटिंग 1 0. सो 0.4 एंड 4/10 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अभिलाषा हैड 100 बीड्स. अभिलाषा के पास में 100 बीड्स हैं. शी लॉस्ट 25 बीड्स. उस 100 बीड्स में से 25 बीड्स जो थी वो लॉस्ट हो गई, खो गई अभिलाषा से. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बीड्स वर लॉस्ट बाय हर? तो फ्रैक्शन में हमें बताना है कि कितनी बीड्स उससे खो चुकी है. एंड राइट दिस फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म. ओके. सो सेम वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन एज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. फ्रैक्शनल डेसिमल भी बताना है हमको और प्रॉपर डेसिमल भी बताना है हमको. सो सी टोटल बीट्स. सो टोटल बीट्स कितनी थी अभिलाषा के पास में? सो टोटल बीट्स वर 100 एंड शी लॉस्ट. कितनी बीट्स वो खो चुकी है? सो शी लॉस्ट 25 बीट्स आउट ऑफ 100 बीट्स. ओके. नाउ अब अगर हमें इसको फ्रैक्शन में शो करना है तो फ्रैक्शन में शो करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 25/100. ओके. क्योंकि 100 में से 25 वो लॉस्ट कर चुकी है. इट इज आस्क्ड फ्रैक्शन ऑफ द बीट्स वर लॉस्ट बाय हर, सो इट विल बी 25/100. नाउ अब अगर हमें इसको डेसिमल फॉर्म में शो करना है, सो डेसिमल फॉर्म में शो करने के लिए आप क्या करेंगे? आप न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे पहले, जो भी न्यूमरेटर में गिवन है 25, डिनोमिनेटर में 100 है,
दैट मीन्स डेसिमल की जो प्लेसमेंट है वो 2 डिजिट के प्रायर आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है 5 एंड 2, सो इसके प्रायर हमने डेसिमल लगाया एंड देन वी विल कवर इट बाय पुटिंग 1 0, सो 0.25 एंड 25 अपॉन 100। अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो 25 अपॉन 100 इज द आंसर, और डेसिमल फॉर्म में पूछा जाए तो 0.25 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, so students, today we have finished exercise 5A and 5B both. Okay, so now in my next lecture I will continue after this 5B. I hope today's topic is clear to you. So that's all for today. Now I will meet you back in next class. Till then, take care of yourself. Thank you so much.